السلام علیکم، میں ہوں ابو حمزہ معروفی۔ استقبال ہے آپ کا میرے چینل نو مور پر۔ دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ ایرو ٹول، ہینڈ ٹول اور روٹیشن ٹول کا کیا استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو تو میں ڈسکرپشن میں اس کی لنک ڈال دوں گا، آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان پیج کو سیکھ سکیں۔ اگر آپ ان پیج میں نئے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ میری ویڈیو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں تاکہ آپ پورے طور پر ان پیج کو سیکھ سکیں۔ تو آج ہم سیکھنے والے ہیں ان پیج کے اندر یہ 4 باکس۔ پہلا جو ہے یہ لنکنگ ٹول ہے، اس کے بعد ڈی لنکنگ ٹول ہے، اس کے بعد یہ ٹیکسٹ باکس ہے، اس کے بعد یہ ٹائٹل ٹیکسٹ باکس ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم ٹیکسٹ باکس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھو، ان پیج کے اندر اگر آپ کو لکھنا ہو تو آپ ہینڈ ٹول پر کلک کرتے ہیں اور یہاں کرسر لاتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو بھی چاہیں یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ لیکن بہت سی مرتبہ آپ کو جب آپ ان پیج میں کام کرنے لگیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہمیں لکھنا ہوتا ہے لیکن ہمارا کرسر وہاں نہیں آ سکتا ہے، تو اس کے لیے ٹیکسٹ باکس اور ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے ٹیکسٹ باکس لے کر کے دکھاتا ہوں۔ جیسے یہ میں نے ایک ٹیکسٹ باکس لیا ہے۔ اب اگر ہمیں یہاں پر لکھنا ہے کچھ تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو لکھ کر کے دکھاتا ہوں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آگے میں لکھ دیتا ہوں، میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمارا سیکھنا سکھانا بھی ہو جائے اور آپ کا شکریہ بھی ادا ہو جائے، اس لیے میں نے یہ لکھ دیا ہے۔ آگے میں لکھ دیتا ہوں، براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، شکریہ۔ ابو حمزہ معروفی۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ ہمیں کہیں پر کچھ لکھنا ہو تو اس کے لیے ٹیکسٹ باکس کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ٹائٹل ٹیکسٹ باکس جو ہے یہ بھی لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے، آپ نے ابھی فرق دیکھا ہوگا کہ جب میں ٹیکسٹ باکس لیتا ہوں تو یہ چاروں طرف سے چھوٹا بڑا جیسا چاہے ویسا ہوتا ہے، ہم جیسے چاہیں ویسا لے سکتے ہیں۔ لیکن جو ٹائٹل باکس ہوتا ہے وہ صرف چوڑائی میں ہی آتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماؤس کا نشان میں نیچے کھینچ رہا ہوں لیکن لکیر آپ کو اوپر ہی نظر آ رہی ہے اور باکس اوپر ایک لائن میں ہی بنا ہے۔ دوسرا آپ کو فرق اس طرح سے بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ادھر ڈاٹ آ رہا ہے، ایک ادھر ڈاٹ آ رہا ہے، یعنی ہم اسے دائیں طرف بڑا کر سکتے ہیں، بائیں طرف بڑا کر سکتے ہیں، اوپر نیچے ہم کچھ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ٹیکسٹ باکس کو دیکھیں گے تو ٹیکسٹ باکس کے چاروں طرف آپ کو ڈاٹ نظر آ رہے ہیں، آپ چاروں طرف سے اسے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں۔ دوسرا ایک فرق یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکسٹ باکس میں کچھ لکھتے ہیں، جیسے میں یہ میٹر کو کاپی کرتا ہوں، یہ میں نے کاپی کیا اور اس کے بعد یہاں میں نے نیچے جگہ دے کر کے پیسٹ کر دیا۔ اب ہمارے یہاں پر ٹیکسٹ باکس میں جگہ مکمل ہو گئی ہے، تو ہمارا باکس نہ بڑھ رہا ہے اور نہ ہمارا میٹر سامنے آ رہا ہے۔ جبکہ اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کے اندر اگر ہم اس طرح سے میٹر ڈالتے ہیں تو یہ آٹومیٹک بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ فرق ہے ٹیکسٹ باکس اور ٹائٹل ٹیکسٹ باکس کے اندر۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ٹیکسٹ باکس اور ٹائٹل ٹیکسٹ باکس سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم لنکنگ ٹول اور ڈی لنکنگ ٹول کو سمجھتے ہیں۔ تو لنکنگ ٹول جو ہوتا ہے وہ دو باکس کو آپس میں مربوط کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دو باکس کو آپس میں لنک کرنا ہو تو اس کے لیے لنکنگ ٹول کا استعمال ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس باکس کا سلیکشن کرتے ہیں تاکہ ہم ایک سے زائد باکس لے سکیں اور میں آپ کو اچھی طرح سمجھا سکوں کہ کس طرح سے ان کا آپس میں رابطہ کرنا ہوتا ہے، کس طرح سے انہیں لنک کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں باکس سلیکٹ کرنا ہوگا۔ سلیکٹ کرنے کے لیے ہمیں
एरो टूल लेना होगा। एरो टूल लेने के बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने में कभी कभार हमें परेशानी होती है कि हम इस पर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट नहीं होता। तो उसका एक तरीका ये भी है कि आप बाहर से माउस का बायां बटन दबाए दबाए अंदर खींचें, और जब ये पूरी तरह आपके माउस से कवर हो जाए तो आप इस निशान को छोड़ दें, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अब इस बॉक्स की हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से एडिट मेनू में जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप एडिट के अंदर ये कॉपी लिखा हुआ है, जिसकी शॉर्टकट की यहाँ दिखा रहा है Ctrl+C। तो आप चाहें तो कीबोर्ड से Ctrl+C दबा करके कॉपी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। यह अभी इसकी कॉपी हुई है। अब इसको पेस्ट करना है हमें यहीं पर। तो आप फिर से एडिट मेनू में आएंगे यहाँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पेस्ट लिखा हुआ है और ये Ctrl+V लिखा हुआ है। यानी कीबोर्ड से अगर आप Ctrl+V प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा वो। तो यहाँ से हम पेस्ट पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक निशान बन करके हमारे सामने आएगा। हम इसको बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ पर रख करके इसे पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये हमने एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद हम 2 बॉक्स और नीचे भी ले लेते हैं, ताकि मैं आपको अच्छी तरह समझा सकूं कि इसका क्या इस्तेमाल होगा। फिर से हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के लिए अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और फिर इस पर क्लिक करते हैं तो इसका सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। उसका तरीका यह है कि आप बाहर से इस तरह से माउस का बायां बटन दबाए दबाए अंदर की तरफ खींच करके लाएं, और जब ये पूरी तरह से कवर हो जाए तो माउस का बटन छोड़ दें, दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका सिलेक्शन का ये है कि आप एक मरतबा इस पर क्लिक करें और शिफ्ट बटन प्रेस करें, और उसके बाद अगले बॉक्स पर क्लिक करें तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि मैंने भी आपको करके दिखाया। उसके बाद फिर से हम एडिट मेनू में जाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और फिर यहीं से पेस्ट करते हैं। ये निशान हमारे सामने आ गया। हम इसके लेवल में इस तरह से रख देते हैं। अब मैं ये सारी जगहों से पहले मीटर ख़त्म कर देता हूँ, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। ये मैंने बैक स्पेस से पूरा ख़त्म कर दिया, ये भी ख़त्म कर दिया, और यहाँ पर ये मैं पूरा मीटर एक लाइन में ले लेता हूँ, ताकि आपको एक मजमून की तरह, एक पैराग्राफ की तरह दिखे और अच्छी तरह से वाजे हो जाए मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ। ये हमने इसका सिलेक्शन किया और ये राइट वाले पर हमने क्लिक कर दिया। ये अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको अच्छी तरह से समझाया है। ये मैंने सिलेक्शन किया है। सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ से एडिट मेनू से यहाँ से कॉपी और उसके बाद यहीं से पेस्ट कर देता हूँ। आप देखेंगे मेरा मीटर बढ़ गया है। फिर से मैं जाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं कीबोर्ड से Ctrl+V करके पेस्ट करने लगा हूँ। आप देखेंगे कि जैसे ही मेरा मीटर यहाँ पर ज़्यादा हो गया बॉक्स से, तो यहाँ पर एक लाल पट्टी आ गई और आगे का मेरा मीटर नज़र नहीं आ रहा है। तो लिंकिंग टूल का इस्तेमाल ये होता है कि हम चाहते हैं कि जब हमारा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मीटर ज़्यादा हो जाए तो हम उस टेक्स्ट बॉक्स को अगले टेक्स्ट बॉक्स से लिंक कर दें, ताकि जैसे ही हमारा मीटर ज़्यादा हो जाए वो अगले बॉक्स में शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ से लिंकिंग टूल पे क्लिक करना होगा। ये आप देख रहे हैं लिंकिंग टूल पे मैंने क्लिक किया है और आप ये देख रहे हैं कि सामने का जो पेज है उसकी शक्ल बदल गई है। अब आप देखेंगे कि ये जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया ये पेज की भी शक्ल बदल गई है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि माउस पॉइंटर जो है उसकी शक्ल भी बदल गई है। अब यहाँ पर हम जो हमारा पहला पेज है वहाँ पर एक मरतबा क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें बताना है कि जब हमारा मीटर मुकम्मल हो तो हमारा मीटर किस बॉक्स में जाए, आया नीचे वाले में या इधर। तो हमको बाएं तरफ ले जाना है, तो इसलिए हम एक मरतबा यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा मीटर जैसा कि आप देख रहे हैं कि मीटर ज़्यादा था तो वह आगे शिफ्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि जब हमारा मीटर इस सफ़े में मुकम्मल हो जाए तो यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो हम एक बार फिर यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद ये नीचे वाले पर क्लिक करेंगे। तो ये आप एरो का निशान देख रहे होंगे कि जैसे ही यहाँ पर मीटर हमारा मुकम्मल होगा वो हमारा मीटर अगले टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। इसी तरह से हम चाहते हैं कि अगर हमारा मीटर यहाँ भी ज़्यादा हो तो हमारा मीटर अगले टेक्स्ट बॉक्स में चला जाए, तो उसके लिए भी हम इस टेक्स्ट बॉक्स पर एक मरतबा क्लिक करेंगे और उसके बाद अगले टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। तो आप ये देखेंगे, मैं नीचे दिख करके दिखा देता हूँ कि ये एक एरो का निशान इस तरह से बन गया कि यहाँ हमारा नीचे जैसे ही मीटर मुकम्मल हो तो वो यहाँ ऊपर से शुरू हो जाए। तो इस तरह से अब हमारा ये जो बॉक्स है आप देख रहे हैं, ये चारों बॉक्स हमारे एक दूसरे से लिंक हो गए हैं। ये यहाँ जैसे ही मीटर मुकम्मल होगा ये इस तरह से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही मीटर मुकम्मल होगा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ जैसे ही मीटर मुकम्मल होगा
यहाँ जैसे मेटर मुकम्मल होगा यहाँ से इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा और यहाँ से मुकम्मल होने के बाद सीधा वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को आपस में लिंक करने के लिए इस लिंकिंग टूल का इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको यहाँ पर मेटर डालकर दिखाता हूँ और हम देखते हैं कि क्या हमारा मेटर एक टेक्स्ट बॉक्स से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में शिफ्ट होता है या नहीं, जैसा हमने लिंक किया है उस तरह से। तो उसके लिए सबसे पहले हम हैंड टूल लेते हैं। हैंड टूल लेने के बाद यहाँ मेटर हमारा पहले से कॉपी है तो हम यहाँ पर कंट्रोल V दबा करके पेस्ट करते हैं। ये हमारा मीटर बढ़ने लगा है। आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पर हमारा मीटर ज़्यादा हुआ वो अगले टेक्स्ट बॉक्स में आ गया। अब यहाँ पर हम फिर से पेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पर हमारा अगर मैं यहाँ भी पेस्ट करूँ तो मेरा मीटर यकीनन ज़्यादा होगा तो वो अगले टेक्स्ट बॉक्स में शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। तो दोस्तों हमने लिंकिंग टूल को समझ लिया कि लिंकिंग टूल का क्या इस्तेमाल होता है। अब हम समझते हैं उसी के नीचे डी लिंकिंग टूल। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जब लिंकिंग टूल समझ में आ गया तो डी लिंकिंग टूल भी समझ में आ रहा होगा कि जो हमने टेक्स्ट बॉक्स को लिंक किया है वो लिंक अगर हमें ख़त्म करना है तो उस लिंक को ख़त्म करने के लिए डी लिंकिंग टूल का इस्तेमाल होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं जैसे डी लिंकिंग टूल पर क्लिक करूंगा हमारे सामने का पेज बदल जाएगा, सामने के पेज की शक्ल बदल जाएगी। तो मैं ये डी लिंकिंग टूल पर क्लिक करता हूं, आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सफ़ा हमारे सामने बदल गया है और एरो के निशान आ गए हैं कि कौन सा पेज किधर से लिंक है। अब अगर हमें लिंक ख़त्म करना है, जैसे इस पेज की लिंक ख़त्म करना है तो हम यहाँ पर एक मरतबा क्लिक करेंगे, इसकी लिंक ख़त्म हो गई। इसे ख़त्म करना है तो हम इस पर एक मरतबा क्लिक करेंगे तो यहाँ से ख़त्म हो गई। और ये डी लिंकिंग टूल का इस्तेमाल इसलिए भी हो सकता है कि जैसे हमने इस तरह से इसे लिंक किया लेकिन हमें लगा कि ये गलत हो गया, हमें इस तरह से लिंक करना था, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसे डी लिंक कर देंगे तो ये यहाँ से इनका कनेक्शन खत्म हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा मीटर सिर्फ एक ही बॉक्स में रह गया है क्योंकि उसका किसी से लिंक नहीं है, तो मीटर अगले टेक्स्ट बॉक्स में शिफ्ट नहीं हो रहा है। अब अगर हमें दूसरे तरह से लिंक करना है तो हम यहाँ से फिर से लिंकिंग टूल लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारा इससे लिंक हो गया, मीटर यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जैसे मीटर मुकम्मल हुआ यहाँ शिफ्ट हो गया। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो जैसे ही यहाँ मीटर मुकम्मल हुआ इधर शिफ्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको लिंकिंग टूल, डी लिंकिंग टूल सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज हमने लिंकिंग टूल, डी लिंकिंग टूल और इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को सीखा। कहीं पे हमें मीटर लिखना है तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें आज हमने सीखी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।